لڑکا ہیرو بھی چاہیے. ہاں, اور لڑکے کے ماں باپ بھی نہیں ہونے چاہیے. ہاں لڑکے کے بال بھی پورے نہیں ہونے چاہیے, بہنیں بھی نہیں ہونی چاہیے. بس وہ کہتے ہیں ارے لڑکا ہے بس اچھا ہے, کوئی جھنجٹ نہیں ہے. مطلب وہ ماں باپ اور بہن بھائی جو ہے وہ جھنجٹ ہے. اور زیادہ بہنیں لڑکی کی نکل ہے وہ بھی پریشانی ہے, بہنیں بہت ہیں. بہنیں بہت ہیں, بھائی بھی. یہ مجھے بتائیں, یہ آپ کتنا فرق دیکھتی ہیں آج کے اپروچ میں اور پہلی اپروچ میں؟ بھئی آج کے اور پہلے کے اپروچ میں تو زمین آسمان کا فرق ہو چکا ہے ہر معاملے میں. صرف یہ نہیں کہ جو آج کا موضوع ہے اس معاملے پہ, ویسے ہی بہت چیزیں. لڑکیوں کے لیے ڈیورس لینا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا ہے. مطلب پہلے تو ڈیورس کا لفظ جو تھا نا وہ ایک پہاڑ کی طرح ٹوٹتا تھا, پہاڑ کی طرح. لیکن اب تو کوئی مطلب فیشن ہی ہو گیا ہے. آپ دیکھیں کتنا ریشو بڑھ گیا ہے ڈیورسز کا. اس کی وجہ یہی ہے آپس میں انڈرسٹینڈنگ. اب پیسہ ہے, اگر پیسہ ہے لڑکے کے پاس, دیکھیں بعض لڑکیاں بیٹھی رہ گئیں گھروں میں, بوڑھی ہو گئیں, مطلب ان کی ایج گزر گئی شادی کی, صرف اس چکر میں کہ پیسے والا نہیں ہے. مطلب ہمیں وہ لگژریس لائف چاہیے. حالانکہ یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یہ سب قسمتوں کی بات ہوتی ہے. قسمتوں کی بات ہوتی ہے. شادی کے بعد بھی تو اللہ آپ کو دے سکتا ہے. کہتے ہیں بیوی کے نصیب سے بھی ملتا ہے. لیکن دیکھیے حوصلہ نہیں ہے نا لوگوں میں. اور پھر ایج کی بات ہے کہ لڑکا 2-3 سال بڑا ہو. میرے والد صاحب میری والدہ سے 40 سال بڑے تھے. او مائی گاڈ, 40 سال. جب میری والدہ پیدا ہوئی تھی تو میرے والد صاحب اپنے ماموزاد تھی ان کی, تو میں جا کے اپنے ماموں کو مبارکباد دی تھی کہ 3 بیٹوں کے بعد آپ کی بیٹی ہوئی ہے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ شادی اسی سے ہونی ہے. Oh my God. وہ 12-15 سال کی تھی میری والدہ جو شادی ہوئی. تو کیسے گزاری زندگی ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ایج میں اتنا. لیکن وہ ان کا خیال بہت رکھتے ہوں گے. بہت خیال. میرے والد صاحب کہتے تھے کہ جب میں کسی دوست کے یہاں جاتا تھا, ظاہر ہے ان کا جو دوست تھے وہ انہی کے گروپ کے, وہی ایج گروپ تھا, تو کہا تمہاری ماں کے بچوں کے ساتھ جھولا جھولتی تھی. اور میں سوچتا تھا کہ یار بچی ہے, اب اس کو میں کیا کہوں. ان کی بیگمات بھی ظاہر ہے ایج ان کی بھی ہوتی تھی, وہ ان کے ساتھ بیٹھتی نہیں تھی, وہ ان کے بچوں کے ساتھ جھولا جھول رہی ہے, کھیل رہی ہے. نانی کی واقعی عمری بڑی کم تھی. اچھا کمال سے کالر موجود ہے کافی دیر سے کوہاٹ سے, سمینہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیا حال ہے مدیہ؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک. آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکر الحمدللہ. آپ لوگوں کے ٹاپک بڑے اچھے ہوتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کیا کہنا چاہیں گے اب اس کا؟ جی آپ پھر کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں کہنا یہ چاہوں گی کہ ان کی بات بہت اچھی ہے اور مجھے اچھی بھی لگی ہے. اور میں آپ کو اپنا شارٹ کٹ میں اپنا بات بھی بتانا چاہوں گی کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے اچھا بننے کے بعد. اور دوسرا, میں لڑکیوں کو, بیٹوں کو, بہنوں کو, جن کو بھی ہے, میں اپنی طرف سے ایک ایڈوائس بھی دینا چاہوں گی کہ ان کی زندگی میری طرح سے خراب نہ ہو, ان کو پچھتاوا نہ ہو. ایک تو انہوں نے ڈاکٹر نبیہ نے بات کی کہ اپنے شوہر کا خیال رکھیں, اور دوسرا سسرال میں ماؤں کو وہ نہ کریں. مطلب اچھی زبان والی لڑکی, خدمت گزار والی لڑکی وہی گھر بسا سکتی ہے. تو میرا تو 30 سال ہو چکے ہیں, میرا یہ تجربہ ہے اور میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے. تو اچھا بننا چاہیے, لیکن اتنا بھی نہیں کہ کوئی آ کے آپ کو ہی رون کے چلا جائے, اتنا بھی نہ اچھا بنے. میرے ساتھ یہ ہو چکا تھا کہ جب میری شادی ہوئی تو کافی عرصے تک میری اپنی ماں کے ساتھ بات چیت نہیں ہوتی تھی, کیونکہ میرے شوہر, میرے سسرال والے نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی ماں باپ سے زیادہ بات کروں. ہمارے گھر میں لاؤنج میں فون لگا ہوتا تھا, تو کبھی بھی میں نے اپنی ماں کو فون نہیں کیا, نہ اپنے بہن بھائیوں سے, نہ باپ سے. میں اپنے شوہر کے مطابق ہی چلتی تھی. میری پہلی عید تھی, میں پہلے عید کے ماں سے ملنے نہیں گئی. میری ماں بہنیں انتظار کر رہی تھی, لیکن میں اس وجہ سے نہیں گئی کہ میرے سسرال والوں نے کہا کہ میری بیٹیاں آ رہی ہیں, آپ نہیں جا سکتی. تو میں کافی عرصے کے بعد گئی تھی. میں نے اپنے شوہر کو اپنے بچوں کی طرح رکھا تھا, میرے بچے بھی نہیں تھے. ساس سسر کی خدمت اس لیے کرتی تھی کہ میرے شوہر نہ ناراض ہوں اور میں ان کی نظر میں اچھی بن سکوں. لیکن اسی دوران میرے شوہر مجھے خرچہ بھی نہیں دیتے تھے. میرے بہن بھائی مجھے لینے آتے تھے 1 مہینے کے بعد, اور میں 2 دن سے زیادہ وہاں نہیں رہ سکتی تھی. تو میں نے ان کی بہت خدمت کی اور خاموش رہتی تھی کہ ہماری عادت بھی نہیں تھی, تربیت بھی نہیں تھی کہ ہم آگے سے کسی کو جواب دیں, بڑے کو.
तो वो नहीं देते थे। तो बस वक्त गुजरता गया, जब मेरी देवर की शादी हुई, छोटे देवर की, तो उसकी बीवी सुबह 8 बजे, जब उसने महीने के जाना होता था, सुबह 8 बजे वो उठ के नाश्ता करके अपने शौहर के साथ चली जाती थी। और मैं ये इसलिए नहीं जाती थी, ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ तो मैं माँ के घर चली जाऊंगी, मैं इस तरह करती थी। मैं अपनी नींद कुर्बान करती थी कि मेरी नींद नंद आई है, उसकी खिदमत करूँ, मेहमानों की खिदमत करूँ। लेकिन मेरी देवरानी ठीक अपने सोने का टाइम उसका था, जाने का टाइम उसका था, उसके खर्चे का टाइम था, वो सब कुछ करती थी। फिर वो बदजुबान भी थी आगे से, तो ये लोग उसको कुछ नहीं कहते थे सास ससुर कि ये कहीं हमें रुस्वा ना कर दे, किसी के सामने हमारा पोल ना खोल दे। तो इस वजह से सारी तकलीफें मैंने उठाई। तो मैंने अपने शौहर को, आप यकीन नहीं करेंगी लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने शौहर को शायद बहुत ही ऊपर दर्जा दे दिया था। वो हर रोज मुझे तंग करता था, मैंने शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है, तंग करता था। उसके दौरान मेरे फिर बच्चे हुए 7 साल के बाद, तो उस दौरान में मुझे कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया। मैं कीमो में पड़ी हुई थी कि मेरा शौहर मुझे कह रहे कि मैंने दूसरी शादी करनी है, तुम तो बीमार हो गई हो, खिदमत के लिए करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बहरहाल उसने दूसरी शादी भी कर दी। अब वो सब कुछ दूसरी बीवी के लिए कर रहा है, क्योंकि उसने व्हाट्सएप पे शादी की है, उसके साथ ऑनलाइन शादी की है और सब कुछ, वो पढ़ी लिखी है और उसने सब कुछ लिखवाया। अब वो बंदा उससे निकल नहीं सकता और मुझे कहता है तुम कंप्रोमाइज करो। बेशक आप अपना हर सब कुछ करें, लेकिन एक हद तक करें। जब आप देखें कि बंदा एक दफा नहीं सही होता, दूसरी दफा नहीं सही, तीसरी दफा आप उसको जवाब दें और मुंह तोड़ जवाब दें, ताकि जिंदगी खराब ना हो। यही मेरा पैगाम है सबके लिए, इतना अच्छा ना बने। शुक्रिया समीना जी, आप इतनी बहादुर हैं। अल्लाह पाक ने आपको नई जिंदगी भी दी आपको, और आपके अंदर जो सब्र की, देखें अब हम तो बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। अल्लाह पाक ने आपसे जिस फल का वादा किया, हम तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और आपने जितनी तकलीफें सही हैं, और मतलब इंसान वाकई बहुत कुछ सीखता है। मुझे तो ये भी लगता है कि इंसान को ये भी बाउंड्री रखनी चाहिए कि कोई आपके राइट्स की कितनी पामाली, किस हद तक जाके बस पामाली कर सकता है, और कहाँ पे आपको अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको जो है ना, इस बाउंड्री को भी समझ सकें। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे, आपकी औलाद आपको ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ दे कि आपके साथ ज़िंदगी में जो भी बुरा हुआ ना, आपको वो लम्हात कभी याद ही ना आए। और यकीनन जो सब्र का फल वो अल्लाह पाक की बेहतरीन ज़ात वही दे सकती है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छे दिन ये एग्जाम्पल्स भी हमारे पास ये भी हैं, ऐसे भी हैं, लेकिन लेकिन अल्लाह ताला ने औलाद दी, ये भी कितनी बड़ी बात है कि सब्र का फल मिला। मुझे ये बताएं, अब लेकिन वही औलाद अगर आपके पास और आपके मियाँ आपसे कोऑपरेट ना कर रहा हो तो कितना मुश्किल हो जाता है उसी एक औलाद की परवरिश करना भी। ये तो हाउस वाइफ है, ये तो जॉब भी नहीं करती ना, ये जा सकती हैं, और वही तभी बात तो मजबूरी से बर्दाश्त करना पड़ा ना इन्हें, इसलिए बर्दाश्त करना पड़ा। अगर ये काम कर रही होती है, इतनी पढ़ी लिखी होती तो इतना ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इनको कोई डिपेंडेंट थी मियाँ पे कि वो जो भी जुल्म करें बर्दाश्त के। अच्छा, यहाँ पे बंदा फिर ये नहीं सोच कि हाँ भी इससे अच्छा तो फिर वो जॉब भी कर ली, वो अपनी देवरानी का बता ली, ताकि एटलीस्ट जो उनके साथ हुआ वो वही कह लिए कि इतना भी अच्छा मत बने कि आप वो ना डोर मैट बन जाए, जैसे इनके साथ भी हुआ। तो ये भी कितना बताना, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना भी बड़ा बाउंड्रीज यहाँ पे क्या होनी चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि बाज़ लड़कियों की नेचर भी होती है, उसमें पढ़ाई का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। बाज़ आपकी नेचर, क्योंकि आपकी माँ के अंदर अगर वो चीज़ है तो आपकी बेटी में भी वो चीज़ आएगी, सब्र होगा, सब कुछ बर्दाश्त करेगी। तो बाज़ नहीं कर सकती, इतने बड़े स्टेप नहीं ले सकती हैं। फिर जब आपकी औलाद हो जाती है ना, तो औलाद के बाद तो आप सोच ही नहीं सकते ना कि आप कैसे छोड़ दोगे आप। वो तो निकम्मा भी होगा तो गुजारा करेगी, वो कहेगी ठीक है यार मैंने जिंदगी गुजारनी है। लेकिन वहाँ उनका कहना भी ठीक है कि उस बेचारी ने बहुत ज्यादा सब्र किया, वो कुछ तो ये तो मियाँ का ज़र्फ था ना, वो उसमें नहीं था ना, वो गंदा आदमी था ना, उसने दूसरी शादी कर ली, वो भी कीमो के टाइम पे, कीमो के टाइम पे, जबकि आपको उस वक्त अपनी बीवी का ख्याल रखना चाहिए था। बिल्कुल। वो बीवी जिसने तुम्हारा घर संभाला, बच्चे पैदा किए, सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, तुम्हारी आने वाली दूसरी
भाभी हैं, ये जो भी हैं, वो तो अपने सब कुछ ले रही है ना, वो तो बेचारी ने कुछ मांगा भी नहीं था, उसका तो उनको ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर शौहर नहीं रख रहा था तो फैमिली में से कोई मेंबर खड़ा होता। कोई, हाँ, असल में जब शौहर ही नहीं रखेगा तो बाकी लोग क्यों रखेंगे? मियाँ ही होता है, एक मियाँ होता है, मियाँ आपकी अगर सास मियाँ आपको प्यार मोहब्बत करेगा तो कुछ लड़कियों की वाकई बड़ी ऐसी नेचर होती है कि वो उनको हमेशा जिंदगी में ना, एक तो वो अपनी माँ को भी सबर, उनको लगता है ऐसी शादीशुदा जिंदगी होती है, किस्मत यही कहते हैं, करना है, इसको किस्मत कहते हैं। और आपने सिर्फ वो देना ही है, अपनी तरफ से बस मोहब्बतें भी देनी है, सुकून भी देना है, लेकिन एक यहाँ पे भी बाउंड्री जरूरी है कि आप किस हद तक किसी चीज के पीछे भागे। वो अपने मियाँ से वो कहती है मेरे वाकई उनको इतना ऊंचा मुकाम दे दिया था, बच्चों की तरह मैंने बच्चों की तरह पाला। तो फिर मीना, यहाँ पे भी बदनसीब तो फिर वो मियाँ हुआ ना। बिल्कुल, ये तो खुश नसीब है ना, अल्लाह ने औलाद भी दे दी। लेकिन वो तकलीफ ही आप देखिए, बहुत तकलीफ। सोचे औलाद इतनी प्यारी होती है, लेकिन उसी औलाद के टाइम में अगर आपका मियाँ आपके साथ ना खड़ा हो ना, फिर आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल सही। हाँ, ये बहुत चीजें उस मुख्तलिफ लगने लग वक्त जाती हैं। जब आप लेबर रूम में होते हैं ना, उस वक्त आपको या माँ याद आती है या शौहर याद आता है। शौहर याद आता है, बिल्कुल। और अगर वो साथ ना हो और ऐसी अगर कोई आप जिंदगी में बीमारी हो, अगर आप कीमो में और आपका मियाँ आपके साथ ना खड़ा हो, उल्टा उसने लाके किसी और औरत को खड़ा कर दिया और कह, तो ये मुझे बताएं, अब लड़कियों को ना, कुछ लड़कियों को ये बताने की जरूरत है कि इतना भी नहीं पिसना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बस एक लिमिट होती है ना। मतलब वो क्या कर सकती थी, अब मुझे बताएं ना, वो क्या कर सकती थी? हो सकता है उनके माँ बाप ने, उनकी फैमिली ने भी यही कहा हो कि तुम्हें वहीं रहना है, उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था ना कि वो वापस अपने माँ बाप, अगर वहां से उनको सपोर्ट होती ना, लेकिन हिम्मत बाज लोग, लड़कियां हिम्मत नहीं कर पाती हैं, और जाहिर है मायूब समझा जाता है हमारे माशरे में, तो तलाक को बहुत मायूब समझा जाता है, जबकि अल्लाह ताला ने इस चीज की इजाजत दी है। लेकिन दुनिया माशरा हमारा रहे, तलाक ले ली, तलाक हो गई। अच्छा, वो सारा कसूर औरत को निकालेंगे। हाँ, क्योंकि ये बात को बुरा नहीं कहेंगे। सही है, हमारे मुआशरे में ना तलाक ऐसा लगता है सिर्फ औरत को होती है, बंदे को तलाक को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाज खवातीन, बाज लड़कियां उसको घसीटती रहती हैं, उस जिंदगी को घसीटती रहती हैं, ये चलती रहे जैसे और बच्चे हो जाए, बेटी हो जाए, फिर मजीद घसीटती हैं कि इस तरफ नहीं जाना। तो फिर यही होता है कि सारी जिंदगी उनकी इसी तरह गुजर जाती है, सर में चांदी आ जाती है और फिर कहीं कोई रास्ता नहीं होता। चांदी तो आजकल वैसे भी टैंकर के पानी से आ रही है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है हुमैरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी है मदिया, आप लोग सब लोग? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। हुमैरा क्या कहना चाहेंगी? बस ये कहना चाहूंगी कि ये तो एक औरत की जिंदगी अल्लाह ताला ने बनाई, शायद मेहनत मुशक्क़तों के बाद, बर्दाश्त के बाद, कि उसको रिजल्ट में यही मिलता है कि परेशानी उठाने के बाद कि वो सुरखरू हो जाती है अल्लाह के हुक्म से, लेकिन दुनिया उसे जीने नहीं देती। लेकिन मेरा मैसेज तो यही है कि मेरी भी जब शादी हुई तो मुझे कभी कुछ नहीं था, लेकिन वक्त और हालात ने दिल का ऑपरेशन करा दिया, शुगर का मरीज बना दिया। लेकिन आज मैं ये कहती हूँ कि अपने माँ बाप को प्लीज तकलीफ कोई ना दे, वो वैसे इतनी तकलीफ उठाए हुए होते हैं, तो अपनी तकलीफों को खुद सहना सीखें, खुद बर्दाश्त करना, खुद लड़ना सीखें। हुमैरा जी, आपने कभी अपने घर में टेंशन अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया कभी? नहीं, कभी नहीं, लेकिन उनकी आंखें सब समझ जाती हैं, समझदार होते हैं माँ वो बाप। सब समझ जाते हैं। तो बस ये जिंदगी है, इसमें दौड़ना है, जीतना है, अल्लाह ताला से लौ लगानी है, अल्लाह से दुआ मांगनी है। ये तो वक्त है हमारी, जब तक जिंदा है ये चीजें चलती रहेंगी। और इस रियलिटी का इदराक आपको कब हुआ, ये जो अभी आप बात कर रही हैं, कि आपको कितने से बाद इस चीज का एहसास हुआ कि बस अब अल्लाह से ही लौ लगानी है? ये मुझे अब जाके हुआ 30 साल बाद। 30 साल बाद। कितने बच्चे हैं आपके? हुमैरा जी, आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं, बेटे हैं बेटियां हैं? एक माशाल्लाह अल्लाह ने बेटी दी, नेमत दी है, एक रहमत दी है, बेटा दिया है मुझे, दोनों चीजें दी अल्लाह पाक ने, और रहमत और नेमत दोनों दिए। और जब बेटी हुई तो उसके पैदाइश के 6 महीने बाद मेरा ऑपरेशन हो गया था हार्ट का। बस लेकिन मैं हंसने वाली बहुत थी, उसके बाद मुझे खामोशी ने घेर लिया। बस क्यों खामोशी ने क्यों घेरा? रीजन? वक्त और हालात। तो आपने खुद हिम्मत करनी थी ना। मैंने हिम्मत अब करी है ना, जब मुझे समझ ही नहीं थी, समझ अब आई।
तो अभी भी अब बड़ी जिंदगी पड़ी है, अल्लाह ने आपको सेहत दी अल्हम्दुलिल्लाह, है, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी अल्लाह का आप जितना खुशी शुक्र खुशी अदा जिए, करूं आप कम है। मायूसियों वाली बातें मत करें। नहीं, अल्लाह ने मायूस जितनी नहीं हूं, मैं जिंदगी बहुत दी खुश है, हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल अल्लाह ने जितनी जिंदगी दी है उसको खुशी से जिए और अपने लिए मैं कुछ अपने करें। शौहर के लिए हर वक्त दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला उनको इतना दे परवरदिगार, इलाही। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ख्याल रखा है, इतना कि मैं समझती हूँ आजकल के जमाने में हर कोई नहीं रख सकता। चल फिर आपके परेशानी हस्बैंड किस अच्छा चीज़ की है? तो परेशानी फिर ये बताएं किस चीज की है, वो अभी ये वो पूछ रहे हैं। परेशानी दुनिया है ना मतिया, हाय हाय, दुनिया को दफा करें, अपनी जिंदगी जिए। हाँ बस ये कि तकलीफों ने घेरा इसलिए कि आपके ये दुनिया ससुराल को तो नजरें नहीं भी कह बहुत रही? होती हैं आपकी खुशी हाँ, वही होगी। हुमैरा जी, आप दुनिया ससुराल को तो नहीं कह रही? नहीं नहीं, मैं दुनिया इस वे में कह रही हूँ कि आपकी नजरें बहुत होती है, जब आप बहुत हंसते हैं ना, बहुत खुश होते हैं, तो अगले पल आपका मायूसी में चले जाते हैं। बस ये भी है। चल अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, मैं माँ बाप को कभी कोई तकलीफ ना दे। इलाही आमीन।